Students, in today's lecture, I would be discussing the activity ratios with you, which are also known as efficiency ratios. In my earlier two lectures, in the first lecture of ratios, I had discussed about the short-term solvency position, because we wanted to know, are we able to meet our current liabilities or not? Does the company have sufficient funds, sufficient working capital to meet its day-to-day requirements? Then in my next lecture, I told you about the long-term solvency. In the long-term solvency, we saw how much money we are taking from outsiders and how much money we are taking from the shareholders, and what is the relationship. Because in long-term solvency, we generally see that we should not be dependent on outsiders for our assets and management. Too much dependence on outsiders is not a good sign of long-term stability of the business organization. Now, we know that we have good short-term solvency, we have good long-term solvency. Apart from that, today what I am going to discuss with you is that the main objective of the business is to produce goods, sell them, recover the money, and invest again. So, in this regard, the first ratio which you calculate is inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio. I repeat, inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio. This is a very important ratio. Why? The reason being, objective of every business enterprise is to produce goods and sell. So here, what are we going to do? We are going to take cost of goods sold divided by average inventory. Average inventory. See, here we take cost of goods sold divided by average inventory. Average inventory is opening stock plus closing stock divided by 2. Suppose we have cost of goods sold of rupees 1 lakhs and we have average inventory of 25,000. This will give you 4 times. 4 times means in 1 year we have been able to produce goods and sell them 4 times. Now I'll tell you another good way of this is, what is the inventory turnover ratio? Inventory period. How, if you want to assess in how many months we'll be able to sell this inventory. So what we can do is that 12 months divided by 4. That means every 3 months we are able to sell the goods. You can also do this by 365 days divided by 4. Or you can do by weeks, 52 weeks divided by 4. So this will give you the period. This will give you the period. 4 nines are 36. 4 ones are 4. Approximately in 91 days, we are able to sell our goods. Here, 4 ones are 4. 4 threes are 12. That means in 13 weeks, we are able to sell the goods. This is days. So, remember one thing. The more the ratio, more the times, जितना times ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा बिजनेस के लिए. जितना times ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि उतना पीरियड आपका कम आ जाएगा. That means lower the period, more liquid is your stock. हमें मकसद ये है कि हमारा माल जो हम बनाते हैं वो कितने पीरियड में बिक जाता है. सपोज यहाँ पे अगर हमारे पास 50,000 होता है एवरेज इन्वेंट्री,
एवरेज इन्वेंट्री हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1 लाख है और एवरेज इन्वेंट्री 50,000 है, तो दिस कम्स टू 2 टाइम्स। इसका मतलब है हमारा 6 महीने में वी आर एबल टू सेल द गुड्स इन 6 months एज कंपेयर टू 3 months। दैट इज नॉट गुड। तो जितना पीरियड लोअर होगा उतना खराब है, और जितना टाइम्स ज्यादा होगा उतना अच्छा है बिजनेस के लिए। इट इज गुड फॉर द बिजनेस। ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो हमारा इससे बहुत चीजें हमें पता चल जाती हैं कि जो माल हम बना रहे हैं वो डिमांड में है कि नहीं, जो माल हम बना रहे हैं वो बिक रहा है कि नहीं बिक रहा। ये तो नहीं है कि वी आर प्रोड्यूसिंग सेकेंड हैंड गुड्स, वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग गुड्स अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर्स। हमने माल बना के रख लिया, उसका फायदा क्या होगा? हमारी सारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, हमारी क्विक रेशियो सब खत्म हो जाएगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो। तो दिस विल इंडिकेट यू कि हाउ फास्ट वी आर एबल टू सेल आवर स्टॉक। तो अगर आप ध्यान से देखें इस रेशियो का जो सिग्निफिकेंस होता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज टू डिटरमिन वेदर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक हैज बीन जुडिशियस और नॉट। That is, only the required amount is invested in stock. Yes. It measures the efficiency of inventory management. It shows the number of times the amount is invested in inventory is rotated. कितनी बार हमने माल बना के बेचा है। You have to be very clear with this. अब इसके न्यूमेरिकल्स होंगे, आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। इसमें हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसलिए लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है वो आपको पता है। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हम सेल्स इसलिए नहीं लेते क्योंकि सेल्स में ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर इंक्लूड हो जाएगी। तो ग्रॉस प्रॉफिट से तो हमारा मतलब नहीं होता, जब माल बेचते हैं जब ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो इसलिए वी टेक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका रीजनिंग समझ आना चाहिए। और एवरेज इन्वेंट्री इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर कोई भी फ्लक्चुएशन है, हमारी ओपनिंग स्टॉक की फिगर ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक की फिगर ज्यादा है, ओपनिंग स्टॉक की कम थी, तो जब हम उसका एवरेज आउट कर देते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज मींस यू आर आयरनिंग आउट, यू आर टेकिंग आउट दी फ्लक्चुएशंस। तो इसलिए हम ओपनिंग स्टॉक डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। सपोज खाली आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो आप उसका एवरेज नहीं निकालेंगे, डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे। आप डिवाइड बाय 2 जब करेंगे जब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों की फिगर दी जाएगी। तो अब आप इसके जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब सुनिए मेरी बात। कई बार बिजनेसेस में क्या होता है, आपने माल बनाया बेच दिया, माल बनाया बेच दिया, दबादब माल बेचते जा रहे हो। वो भी हमारा मकसद नहीं है। हमारा मोटिव है पैसा भी आना चाहिए। अगर हमने माल बना के बेच दिया और पैसा रियलाइज नहीं किया तो बिजनेस के लिए और ज्यादा खतरा है। बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड, योर स्टॉक इज ऑल्सो गॉन एंड यू हैव नॉट रिसीव्ड द मनी। सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस फेल बिकॉज ऑफ दिस। दे सेल देयर गुड्स लिबरली ऑन लिबरल टर्म्स, गिव्स गुड क्रेडिट पीरियड, and then they are not able to realize the money. So for this we will calculate another ratio called debtors turnover ratio. This is known as debtors turnover ratio. So the second ratio which we calculate is known as debtors turnover ratio. तो यहाँ पे हम debtors turnover ratio निकालेंगे। debtors turnover ratio, डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालते हैं हम। इसमें डेटर्स टर्नओवर रेशियो, इसमें हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने डेटर्स को माल बेचा है, हम यहां पे नेट क्रेडिट सेल्स लेंगे क्योंकि सेल्स माइनस रिटर्न्स। तो यहां पे हम नेट क्रेडिट सेल्स लेते हैं। नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स, डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स, एवरेज डेटर्स लेते हैं हम इसमें। अभी एवरेज डेटर्स क्या होते हैं सर? आपके पास ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2। एक चीज याद रखिएगा,
आपने जब अकाउंट्स बनाए थे, जब सीखा था, एक हमारे पास बिल्स रिसीवेबल होते हैं और एक हमारे पास डेटर्स होते हैं। डेटर्स, कई डेटर्स से हम क्या ले लेते हैं? बिल्स रिसीवेबल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? बिल्स रिसीवेबल। तो आपके पास कभी कभी ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल दिया होगा, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स। इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से। 4 से नहीं, 2 से, क्योंकि ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बीआर इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेटर्स एंड क्लोजिंग बीआर इज क्लोजिंग। समझ आ गया? इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब इसमें क्या करते हैं हम, सुनिए। हमारी नेट क्रेडिट सेल्स है, सपोज नेट क्रेडिट सेल्स हमारी 5 लाख रुपीज की, और हमारे एवरेज डेटर्स हैं सपोज 1 लाख रुपीज के। इसका मतलब 5 टाइम्स। सर अब ध्यान से देखना, अगर मैं डेज में निकालना चाहूंगा पीरियड रेशियो, तो आई विल डिवाइड 12 बाई 5, तो 5 2 सा 10, 2.40 मंथ्स में पैसा आ रहा है। 52 वीक से डिवाइड करूंगा, 5 1 सा 5, वही 1.04 वीक्स में पैसा आ रहा है। दिस इज वीक्स में। नहीं सॉरी, 5 1 सा 5, 0, 10.4 वीक्स में पैसा आ रहा है, और ये 2.4 मंथ्स में पैसा आ रहा है। और डेज से डिवाइड करूंगा तो 365 डिवाइड बाय 5, 5 7 सा 35, 5 3 सा 50, 73 डेज में पैसा आ रहा है। सर ये देखिए हमारे पास, वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस। ये जितना टाइम्स क्या होगा, जितना टाइम से ज्यादा होगा, जितना टाइम से ज्यादा होगा यहां पे, ठीक है, उतना मंथ्स कम हो जाएगा। तो हायर द रेशियो बेटर इट इज, हायर द रेशियो बेटर इट इज। इस केस में ये होता है। सपोज हमारे पास, ध्यान से देखना जो मैं कहना चाह रहा हूं, सपोज मैंने अभी एक स्टेटमेंट पास करी है और आप लोगों को समझ, आप वैसे ही ले लेंगे। सपोज ये 5 लाख है और एवरेज डेटर्स 2,50,000 है, तो ये 2 टाइम्स हुआ। तो 2 टाइम्स बढ़िया हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 मंथ्स आ जाएगा। तो जितने टाइम्स ज्यादा उतना अच्छा नहीं है। जितना टाइम्स स्टॉक टर्नओवर रेशियो में, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज डिफरेंट। इसमें क्या होता है, जितना टाइम्स, ये जितना टाइम्स हमारा, ध्यान से देखना, अगर ये हमारे पास वो 5 टाइम्स था और ये 2 टाइम्स है, तो अगर हमारा 2 टाइम्स हुआ तो हमारा 6 मंथ्स आ जाएगा, और वहां पे हमारा 5 टाइम्स था तो पीरियड कम आ गया। तो ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा, जितना कम होगा उतना खराब हो जाएगा। सो यू हैव टू बी केयरफुल विद दिस। हमारा मकसद है माल बनाना है, बेचना है और अपने पैसे वसूल करने हैं। सो वी कांट कीप डेटर्स आउटस्टैंडिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड। याद रखना, जब डेटर्स आउटस्टैंडिंग हो जाते हैं एक लॉन्गर पीरियड के लिए, तो उनसे पैसा लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यू थिंक फॉर योरसेल्फ, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू टेक मनी फ्रॉम डेटर्स if they are outstanding for a longer period. So you have to be very very smart and careful regarding this. तो ये रेशियो हम किस लिए निकालते हैं? ये रेशियो हम इसलिए निकालते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि जो माल हमने बेचा है उसका पैसा हमें कब तक रिकवर हो गया है, और कितनी टाइम्स हमने माल बेचा है और कितना पीरियड, कितने टाइम में पैसा रिकवर हो गया है। तो टाइम भी निकल जाता है। तो इसका जो हमारा सिग्निफिकेंस होता है इस रेशियो का भी बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है, बड़ा इंपॉर्टेंट रेशियो होता है ये भी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो। तो अगर आप ध्यान से देखें सर, इसका दिस रेशियो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स इन्वेस्टेड इन ट्रेड रिसीवेबल्स इज रोटेटेड और टर्न्ड ओवर इन अ ईयर इन रिलेशन टू क्रेडिट सेल्स।
It shows how quickly trade receivables are converted into cash and cash equivalents, and thus shows the efficiency in collection of amounts due against trade receivables. A higher ratio is better since it shows that debts are collected promptly. A low ratio shows inefficiency in collection or increased credit period and more investment in trade receivables than required. इसी तरीके से फिर हम इसको इस टर्नओवर रेशियो से हम डेट कलेक्शन पीरियड निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, डेज में भी निकाल सकते हैं, डेज में भी निकाल सकते हैं, वीक्स में भी निकाल सकते हैं, और ये मंथ्स में निकल गया, वीक्स में निकल गया और ये डेज में निकल गया। जितना टाइम्स ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा, जितना पीरियड कम होगा, याद रखना, जितना पीरियड कम होगा उतना अच्छा होगा। पीरियड कम होगा, जितना पीरियड कम होता जाएगा। अगर ये टाइम्स ज्यादा होता, ये टाइम्स ज्यादा होता, अगर ये 50,000 होता तो 10 टाइम्स होता, 10 टाइम्स होता तो हमारा बहुत अच्छा हो जाता। तो जितने टाइम्स ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा, जितना पीरियड कम होगा उतना अच्छा होता है। So this ratio we calculate in order to see how fast we are able to collect money from our debtors. We are able to convert into cash and cash equivalents, right? Now the third ratio which we calculate here, is creditors turnover ratio. Creditors turnover ratio. Creditors turnover ratio. Creditors turnover ratio. इसमें हम क्या करते हैं, नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। एवरेज क्रेडिटर्स में वही होगा, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय 2। यह आपके पास होगा ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स। इसको भी हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। सेम चीज जैसे वहां करते हैं, इधर भी हम कोई भी फ्लक्चुएशन उसको आयरन आउट करना चाहते हैं। अब देखिए इसकी क्या खासियत है, इसका जितना टाइम्स कम होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि उतना पीरियड ज्यादा होगा। पीरियड ज्यादा का मतलब है वी आर गेटिंग अ लॉन्गर पीरियड ऑफ क्रेडिट फ्रॉम आवर सप्लायर्स। ध्यान से देखिए, सपोज हमारी नेट क्रेडिट परचेजेस है 10 लाख रुपए की, और हमारे पास हमारे जो एवरेज क्रेडिटर्स हैं वो 2 लाख के हैं। इसका मतलब ये हमारे पास 5 टाइम्स हो गया। अब अगर हम 12 मंथ्स को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 2.4 मंथ्स। अगर वीक से करते हैं 5 1 ज़ा 5, वही 10.4, और अगर हम उससे 365 से करते हैं डिवाइड बाय 5 तो दैट कम्स टू 73 डेज। अब आप ध्यान से देखना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। और अगर सपोज ये हमारे पास होता 2 लाख के बदले 1,25,000 होता। कितना होता? 1,25,000। ठीक है, ये आप इसको एक बार 1 लाख से ले लो, 1 लाख होता तो ये हमारे पास 10 टाइम्स होता। कितना टाइम्स होता? 10 टाइम्स। सर जब 10 टाइम्स होगा तो हम जब 12 से डिवाइड करेंगे 10 तो 1.2 मंथ्स, 52 वीक्स को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 5.2 वीक्स, और डेज से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 36.5 डेज। तो मुझे एक बात बताइए,
सर ये ज्यादा अच्छा है कि ये ज्यादा अच्छा है? दिस इज बेटर. व्हाई? बिकॉज वी आर गेटिंग व्हाट? लिबरल क्रेडिट. वी आर गेटिंग व्हाट? लिबरल क्रेडिट. तो इस केस में ध्यान रखना, जितना टाइम्स कम होगा उतना अच्छा होता है. डेटर्स टर्न रेशियो में जितना टाइम्स ज्यादा होगा उतना अच्छा होता है. स्टॉक टर्न रेशियो में जितना टाइम्स ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है. बट ये डिफरेंट है, इसमें जितना टाइम्स कम होगा उतना अच्छा है, क्योंकि हमें क्लियर पता चल रहा है वी आर गेटिंग लिबरल क्रेडिट. आप खुद देख लें, जब 5 टाइम्स था तो वी वर गेटिंग 73 डेज टू पे, एंड जब वो 10 टाइम्स था वी वर गेटिंग ओनली 37 डेज टू पे द अमाउंट. हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखनी होती है व्हेन यू आर स्टडिंग दिस रेशियो. तो ये देखिए, जितना मैंने आपको बताया पीरियड ज्यादा होगा उतना अच्छा है, बट ऐसा ना हो कि हमारे पास पैसे ही नहीं थे देने के लिए. अगर हमारे पास पैसे ही नहीं है देने के लिए तो बट नेचुरल पीरियड बढ़ता चला जाएगा. तो यू हैव टू सी दैट वी शुड हैव द रिक्वायर्ड फंड्स. वी आर नॉट, दिस रेशियो मंथ्स और पीरियड इज नॉट इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स. वी हैव फंड्स टू पे, बट द सप्लायर्स हैव गिवन अस लिबरल क्रेडिट. ये सब एनालिसिस रेशियोज हैं जो हमें देखने हैं. अगर सुनिए, बाहर के लोग जिनसे हम माल खरीदते हैं वो हमें लिबरल क्रेडिट दे देते हैं, और जिससे वो हम माल बेचते हैं उनको हम क्रेडिट पीरियड कम दें तो हमारे तो बहुत अच्छा हो जाएगा. हमने भारत से माल लिया, उधार पे लिया, माल बनाया, बेचा, पैसा जल्दी ले लिया, उनको दे दिया. बहुत बिजनेसमैन करते हैं ऐसे, अपना वर्किंग कैपिटल बहुत रीजनेबल लगाते हैं, बाकी ऐसे ही करते हैं. दे आर वेरी shrewd. They are able to procure goods at liberal credit. They convert them into finished goods, whatever they sell, semi-finished goods or raw material. And when they sell, they are able to get money from their debtors at a very sooner period. वो पैसा उनसे जल्दी से वसूल कर लेते हैं, और वो पैसा फिर वो किसको दे देते हैं? अपने सप्लायर्स को दे देते हैं. तो इससे क्या होता है? दे हैव टू कीप लेस ऑफ वर्किंग कैपिटल. तो दिस रेशियो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इससे भी हमें लिक्विडिटी पता चलती है. ये रेशियो का सिग्निफिकेंस क्या है, ध्यान से देखिएगा. इसको ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं. इसका सिग्निफिकेंस है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो is to determine the efficiency with which the trade payables are managed and paid. Higher turnover ratio or shorter payment period shows less credit period being available or early payments being made. A high ratio also indicates that the enterprise is not availing full credit period. A low ratio or a longer payment period indicates that creditors are not paid in time or increased credit period. So इसको ध्यान से इंटरप्रेट करना होता है कि अगर हमारे पास पीरियड ज्यादा आ रहा है, जैसे यहाँ पीरियड ज्यादा है, बट ये देख लेना चाहिए कि वी शुड हैव इनफ फंड्स टू पे. दिस इज, वी आर नॉट फेलिंग ऑन अ पार्ट, बट इट इज द लिबरल क्रेडिट पॉलिसी व्हिच हैज बीन एक्सटेंडेड टू अस बाय द सप्लायर्स. Then the fourth activity ratio which we calculate is our working capital turnover ratio. Working capital turnover ratio हम जो निकालते हैं वो किस लिए निकालते हैं, ये मैंने आपको बता दिया. क्रेडिटर्स, पहला रेशियो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, सेकंड रेशियो डेटर्स टर्नओवर रेशियो है, थर्ड क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो. अब हम निकालते हैं चौथा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो, ये हम ये देखना चाहते हैं कि हम अपना वर्किंग कैपिटल अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं. तो इसमें भी हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जैसे हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिया था, यहां पे भी हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेते हैं, प्रॉफिट की फिगर नहीं डालते हैं. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल क्या होगा? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज वर्किंग कैपिटल. इसको पीरियड में नहीं निकालते हैं, इसको बस ये देखते हैं कि हमने जो वर्किंग कैपिटल है, सपोज हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है
हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 6 लाख रुपए और हमारा वर्किंग कैपिटल था 2 लाख रुपए, तो ये 3 टाइम्स आ गया। अगेन जितना रेशियो ज्यादा होगा, जितना टर्नओवर ज्यादा होगा, उतना अच्छा होगा। इसका मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ है कि हमने पूरे साल में अपना जो वर्किंग कैपिटल था हमारे पास, उसको हमने 3 बार रोटेट किया है, 3 बार हमने माल बनाया, बेचा, पैसा वापस लिया, सारी एक्टिविटीज करी। तो वर्किंग कैपिटल टर्न रेशियो भी हमारा हायर रेशियो होना चाहिए, बिकॉज तभी हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी अच्छी रहेगी। हमारा मकसद क्या होता है, जब हमारा ये सारे रेशियोज अच्छे होंगे तो आप सुनिए कि हमारे ऑटोमेटिकली शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी अच्छी होती चली जाएगी। अगर हम इन रेशियोज में, एफिशिएंसी रेशियोज में गड़बड़ कर देंगे तो हमारी सॉल्वेंसी इफेक्ट कर देगी। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट आवर एफिशिएंसी रेशियोज, आवर एक्टिविटी रेशियोज, इसलिए हम ये निकालते हैं। हर बिजनेस का मकसद होता है, याद रखना, माल बना के बेचना और पैसे वसूल करना। किसी बिजनेस का मकसद नहीं होता माल बना के होर्ड करना। होर्डिंग करने से कुछ नहीं होना, सारा माल खराब हो जाएगा। आपने माल होर्ड कर लिया, फैशंस चेंज हो गए, यू विल गेट इनटू लॉसेस। So every businessman wants to produce goods and sell them and recover the money as fast as possible. That is why think we have seasonal sale, summer sale, winter sale, monsoon sale. वो क्यों? क्योंकि हर एंटरप्रेन्योर अपना माल बेचना चाहता है। They want to sell their goods and recover the money. आज सपोज समर का स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है, उसके बाद मैंने सेल नहीं लगाई है, मॉनसून आ गया, मॉनसून का जो डिमांड है वो अलग है, विंटर्स की डिमांड अलग है, फिर समर आया, उस समय डिमांड अलग हो गई बिकॉज फैशंस हैव चेंज, तो द मटेरियल विच आई हैड ऑफ लास्ट ईयर आई विल नॉट एबल टू सेल। दैट इज वाई शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स क्या करते हैं, समर सेल लगाते हैं जिससे उनका माल वो बिक जाए। उस माल को रखेंगे कहां सर? उसको रखने के लिए स्टोरेज कॉस्ट चाहिए, प्लस वर्किंग कैपिटल उसमें ब्लॉक हो जाएगा। क्यों करेंगे? दे विल नॉट डू इट। सो वो क्या करेंगे, उसको बेच देंगे, एक तो पैसा आ जाएगा विच दे कैन यूटिलाइज फॉर न्यू टाइप ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू डिमांड। सो हर बिजनेस का मकसद ये होता है, माल मैन्युफैक्चरिंग करो, सेल देम, realize the money as soon as possible. So this you should understand is a very important concept of business. So students, in my next class, I will take up the last part of ratios. Those are profitability ratios. We will discuss the profitability ratios. So I have discussed today all the activity and efficiency ratios with you. So please go through your short-term solvency ratios, long-term solvency ratios and activity ratios. In the next lecture, I'll take up the profitability ratios. Okay, thanks.